अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with our defense current affairs, and it is in the series the FCAT course, and it is the most important defense current affairs series. So we are looking into September till January 2022 current affairs. ठीक है, और मोस्ट स्पेसिफिकली डिफेंस, बिकॉज पास्ट ट्रेंड से डिफेंस से बहुत सारे डिफेंस सेक्शन से क्वेश्चंस आ चुके हैं. So in this video we will be looking into the defense current affairs of November month. Okay, so let's start. The first defense current affairs is that is 7th Indian Navy frigate P1135.6 class launched at Yantar shipyard, and that is in Kaliningrad in Russia. Okay, रशिया में बन रही है, वो अभी लॉन्च हो चुकी है. Now it is formally named as Tushil, and it will be commissioned into the Indian Navy by mid 2023. Okay, so the name is Tushil, formally named, मतलब अभी आगे नाम चेंज हो सकता है. ठीक है, moving ahead, blue flag exercise in the year 2021. So it is a multilateral combat exercise, and that is between two countries, India and Israel Air Force. Okay, so 84 Indian Air Force personnel took part in it, and it happened in, this is important, Israel's Ovda Air Base. Okay, so the theme is integration of 4th and 5th generation aircraft in complex operational scenarios. Okay, so this is important, please take a note out of this. themes के बारे में questions आ सकते हैं. Okay, if not in FCAT, CDS में आपको पूछा जाएगा. ठीक है, this is current affairs, one of the most foundation of different types of exams. बैंकिंग ले लो, रेलवे ले लो, कोई भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स तो होता ही है आजकल. ठीक है, सो दिस वुड बी यूजफुल फॉर यू for other exams as well. So moving on, DRDO successfully flight tested SAW. Now SAW का full form देख लीजिए, that is Smart Anti-Airfield Weapon. Okay, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, SAW, that is Smart Anti-Airfield Weapon. Now DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, वो कब फॉर्म हुआ था वगैरह वगैरह आपको खुद क्यूरियोसिटी से सोचना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं और खुद से फाइंड आउट करना है. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि इफ़ आई गो इनटू ईच एंड एवरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, द वीडियो विल बी टू लॉन्ग. फाइन, सो वेन एवर यू गेट एनी क्वेश्चन और ट्राई टू फाइंड योर क्वेश्चंस यार, तो उसी से आपको नॉलेज और इम्प्रूव होगा और करंट अफेयर्स और इम्प्रूव होंगे. मूविंग अहेड, INS वेला कमीशन हो चुकी है, उसकी क्लास क्या है, Scorpion class submarine. So it is the 4th Scorpion class submarine, and the other 3 are INS Karaj, INS Kalvari, INS Khanderi. So ये स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ है, दिस इज INS करंज, NJ है. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दे देना. and it comes under Project 75. So Project 75 includes construction of 6 submarines of Scorpion design, and that is by Mazgaon Dock Shipbuilders Limited. जैसे कि आपको पता है कोचिन शिपबिल्डर्स लिमिटेड भी है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप बिल्डर्स आर देयर, बट ये स्कॉर्पियन डिज़ाइन कौन बनाता है, स्पेसिफिकली INS वेला किसने बनाई है, दैट इज माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स. मूविंग अहेड, नेपाल आर्मी चीफ जनरल Prabhuram Sharma was conferred with honorary rank of General of Indian Army in continuation of tradition that started in 1950. So ये ईयर आपको याद रखना है, और ये ऑनरी रैंक है. जैसे कि हमारे जब इंडियन आर्मी जनरल, द करंट बीइंग जनरल मनोज मुकुंद नरावने, when he visits Nepal, when he visited for the first time during his tenure, he was honored with the honorary rank of chief नेपाल आर्मी चीफ. तो वैसे ही जब नेपाल आर्मी चीफ हमारे पास जब विजिट करते हैं तो हमने ऑनरी रैंक दी उनको, एंड दैट इज़ टू जनरल प्रभुराम शर्मा. तो नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, प्रभुराम शर्मा. मूविंग अहेड टू आवर 6th न्यूज़ टुडे, एंड दैट इज़ इंडो थाई कॉर्पैट 2021. जब ये कॉर्पैट आता है ना, सो इट हैपन्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज, तो इसको आप बाय हार्ट मत करना कि यार कॉर्पैट से एक के साथ होता है. कॉर्पैट मीन्स कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल. Okay, this means just means coordinated patrol. Corpet 2021
कौन से देशों के बीच में हुआ था ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज ये बहुत देशों के साथ होता है। ओके और ये किसकी बात कर रहा है न्यूज़ स्पेसिफिकली, दैट इज टॉकिंग अबाउट इंडो थाई, दैट मीन्स इंडियन एंड थाईलैंड नेवी के बीच में, दैट इज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज एंड इट वाज द 32nd एडिशन। तो 32nd याद रखना। मूविंग अहेड, दुबई एयर शो, सो इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण एरोबेटिक टीम and LCA Tejas participated for the first time. Okay, so this becomes very important. LCA मतलब Light Combat Aircraft Tejas, ठीक है, and it was held at, the air show was held at Al Maktoum International Airport and that is in Dubai. दुबई में हुआ था एयर शो। ओके, दुबई का एयर शो दुबई में हुआ था, कॉमन सेंस। मूविंग अहेड, एक्सरसाइज गरुड़। सो गरुड़ एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस एयरफोर्स, और इंडिया और फ्रांस का नेवल एक्सरसाइज है वरुणा। ये याद रखना है, स्टार मार्क कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और इंडियन फ्रांस का हमने ऊपर और एक एक्सरसाइज देखा जो था, कहाँ है, हमने पहले देखा था, हाँ, जो शक्ति था ना, शक्ति एक्सरसाइज। तो शक्ति एक्सरसाइज इज बिटवीन, देखिए नीचे है, सो एक्सरसाइज शक्ति इज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस एंड दिस वाज इट्स 6th एडिशन। सो इट हैपेंड इन फ्रेजूस फ्रांस, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इस बार 2021 में एक्सरसाइज फ्रांस में हुआ था और इंडियन आर्मी को किसने रिप्रेजेंट किया था, कॉर्का राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन ने। ओके, मूविंग अहेड, सिटमैक्स 2021 ट्राइलेटरल मरीन टाइम एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने कहा था सिटमैक्स, जीमैक्स, ये सब जो एक्सरसाइज है, सिम्बैक्स वगैरह, ये सब एक्सरसाइजेस नेवल एक्सरसाइजेस होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। सो इट वाज द 3rd एडिशन और नाम से आपको पता चल रहा है, S स्टैंड्स फॉर सिंगापुर, I स्टैंड्स फॉर इंडिया and T stands for Thailand and M stands for maritime, EX stands for exercise. So it is India, Singapore and Thailand Navy and that happened in Andaman Sea. Star Market का पूछा जा सकता है कौन सा सी में हुआ था, तो अंडमान सी में हुआ था, अंडमान के नज़दीक। Moving ahead to LCH. So LCH stands for Light Combat Helicopter and that is being developed by HAL. HAL का फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट। सो इसका फुल फॉर्म वो है एंड इट हैज़ बीन हैंडेड टू इंडियन एयरफोर्स बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। LCH, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, दैट इज़ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स में इंडेक्ट हुआ है। मूविंग अहेड, INS विशाखापट्टनम and that was commissioned. So it is a P-15 Project 15 stealth guided missile destroyer. So stealth guided missile destroyer है, आपको टाइप पता होना चाहिए, स्कॉर्पियन क्लास, ये सब क्लास वगैरह क्या है, तो ये दिस इज guided missile destroyer and that was commissioned into Indian Navy and it is the first of 4 विशाखापट्टनम क्लास destroyers. तो इसका क्लास कौन सा है, विशाखापट्टनम क्लास, और ये फर्स्ट है, ठीक है। अभी और 3 आने वाला है, दैट इज फर्स्ट ऑफ 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स, उससे हमें पता चल रहा है। मूविंग अहेड टू एक्सरसाइज दोस्ती। सो एक्सरसाइज दोस्ती इज अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज एंड इट इज़ अ कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज। तो स्टार मार्केट थोड़ा नया है, इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के आपको याद रह जाएंगे, कोस्ट गार्ड का सवाल आ गया तो आप चकरा जाओगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, कोस्ट गार्ड के बहुत कम एक्सरसाइज होते हैं, तो बी अवेयर अबाउट दैट टू। ओके, सो इट वॉज द 15th एडिशन and the coast guards of India, Maldives and Sri Lanka. India, Maldives and Sri Lanka. सिम कार्ड याद रख सकते हो आप, सिम कार्ड, सर ने बोला था यार सिम कार्ड दोस्ती में सिम कार्ड काम आता है ना, दोस्ती में जैसे कि मैं दोस्त से फ़ोन वगैरह कर लेता हूँ, तो सिम कार्ड, ऐसा कुछ भी एसोसिएशन कर लो यार, एकदम अजीब। तो सिम कार्ड मतलब सिम याद रहेगा, तो S stands for श्रीलंका, I stands for India and M stands for Maldives. ओके, तो सिम से आप याद रख सकते हो, सेम शॉर्ट फॉर्म से, एंड दैट इज़ कोस्ट गार्ड। हाँ, कोस्ट गार्ड भूलना मत, नहीं तो नेवल वगैरह लगा दोगे आप, गलत हो जाएगा वो। नाउ अगेन, जैसे कि मैंने कहा था, कॉर्पेट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज, सो इट हैपन्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। सो इंडिया और इंडोनेशिया का भी हुआ था एंड 2021 वॉज द 37th एडिशन। सो इट हैपन्स ट्वाइस इन अ ईयर एंड इट वॉज फर्स्ट टाइम हेल्ड इन 2002, ठीक है, 2002 में पहली बार हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़े बेसिक इनसाइट्स। एंड INS खंजर एंड डॉर्बियर, नहीं यार ये स्पेलिंग रॉन्ग है, दैट इज़ डॉर्नियर, ठीक है, डॉर्नियर मरीन टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, उसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल में। मूविंग अहेड टू आवर 15th न्यूज़, दैट इज़ एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति। सो
the Indian Army as well as the Indian Air Force did participate in it. और जो हमारे मेन बैटल टैंक्स जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है. इट इज़ नॉट ए इंटरनेशनल एक्सरसाइज. दक्षिण शक्ति जो है वो हमारे जो ट्राई सर्विसेज है उनका ही होता है. एंड दैट बिगैन इन द डेजर्ट्स ऑफ जैसलमेर एंड दैट इज़ इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. ओके, मूविंग अहेड टू द 16th, दैट इज़ NCC National Cadet Corps celebrates its 73rd anniversary of its raising day on November 28th. Okay, NCC Day is celebrated every year on 4th Sunday of November. This is important. NCC का मोटो भी मैंने कहा था कि आप कमेंट करिएगा, अगर आपने फाइंड आउट नहीं किया है तो फाइंड आउट करिएगा. एंड इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. सो डू रिमेंबर दिस. एंड दे आर सेलिब्रेटिंग देयर 73rd एनिवर्सरी. तो कब बना होगा ईयर फाइंड आउट करना है. 2021 से माइनस प्लस जो भी आप करके देखोगे जुगाड़ लगा के फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर नोट कर लेना. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून. That's King Guru for you. Have a great time ahead. All the very best. Thousands of tears later. So please whatever. Please I want to reach 1 million.